السلام علیکم dear students. وعلیکم السلام. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے کل دیکھا ہم نے پڑھا تھا واٹر پولیوشن کے بارے میں. واٹر پولیوشن اور ہم نے کیا کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہم نے پولیوشن پڑھا. ٹھیک ہے, تو آج کا جو ٹاپک رہے گا ہمارا پولیوشن آف ریور, کنٹرولنگ واٹر, کنزرویشن آف اور انشاءاللہ آج یہ لیسن آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے ریور گنگا کا نام سنا. تو جو ریور گنگا کا پانی ہے بہت زیادہ کیوں, کیونکہ اس میں جو چیز جو اس کے آس پاس ہے اس کے ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کام جو ٹاؤن سے یا اس کے آس پاس جو انڈسٹریز ہیں ان میں ٹاکسک انڈسٹری نکلتے ہیں یا بیڈ بوٹلز آف انسیکٹس وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ میں آگے اور بہت سارے ہارمفل جو ڈائریکٹلی اس ریور گنگا میں جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے جو گنگا ہوئی بہت زیادہ پولیوٹڈ. ٹھیک ہے, بہت ہائیلی پولیوٹڈ. تو لوگ کیا کرتے ہیں وہاں کے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ریور گنگا ہے وہاں پہ جو بیٹھ کرتے ہیں وہاں پہ وہ بات لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے ٹھیک؟ یس میم. اوکے, تو آئی واز ٹیلنگ کہ جو ریور گنگا ہے آپ لوگوں نے اس کے ریلیٹڈ دیکھا ہوگا جو ہندو لوگ ہیں وہ وہاں پر پوجا وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر بات بھی لیتے ہیں اینڈ ایون وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر جو ان کا ہندو لوگوں کا کوئی مر جاتا ہے تو وہ استیا وغیرہ جو ہوتی ہے ان کو وہ بھی بہا دیتے ہیں اسی میں. تو جس کی وجہ سے یہ جو ریور گنگا ہے یہ بہت زیادہ پولیوٹ ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جو ان کی جو بھگوان کی مورتیاں ہوتی ہے, گاڈیسز کی مورتیاں ہوتی ہیں, یہ ان کو بھی گنگا ریور میں بہا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح وہ استیاں بھی بہا دیتے ہیں جیسے میں نے ابھی بولا ایشز آف ڈیڈ پرسن. ٹھیک ہے, اینڈ فلاورس بھی اسی میں بہا دیتے ہیں اینڈ پالیتھین بیگس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی ریور میں جاتے ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں جو لوگ وہاں کے ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بات کر رہے ہیں وہاں پر. ایون وہ اپنی جو کپڑے وغیرہ ہے وہ بھی وہیں پر دھوتے ہیں اینڈ ایون یوٹینسلس وغیرہ جو برتن وغیرہ ہے وہ بھی وہیں دھوتے ہیں اسی پانی میں. ٹھیک ہے, دے آلسو بات دیئر کیٹلز لائک کاؤز اینڈ بفیلوز ان دا ریور. اینڈ وہ کیا کرتے ہیں جو ان کے جو مویشی وغیرہ ہوتے ہیں جو کیٹلز ہوتے ہیں ان کے جیسے کاؤز ہے, بفیلوز ہے, ٹھیک ہے, گائے وغیرہ, تو یہ ان کو بھی بات دیتے ہیں وہیں پر. یہ ان کا مطلب ان کو بھی واش وغیرہ وہیں پر کرتے ہیں. تو وہ جو واش واٹر وغیرہ ہوتا ہے وہ اوبویسلی وہ سارا کدھر جاتا ہے, وہ اسی ریور گنگا میں جاتا ہے. دیٹ مینس آپ دیکھ سکتے ہیں ایون جو لوگ ہیں وہ وہاں ڈیفیکیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ وہیں پر اسی پانی کے نزدیک ڈیفیکیٹ بھی کرتے ہیں اور وہ فیسز وغیرہ جو ہے یا ایکسکریٹا وغیرہ ہے وہ بھی پھر اسی میں جاتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریور گنگا جو ہے وہ کتنا ہائیلی پولیوٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کس کی وجہ سے, یہ سارا جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہے یہ سارا اس کی وجہ سے ہو گیا ہے جس کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ انکنٹرول ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو یہ ریور گنگا ہے یہ پولیوٹ ہو گیا ہے. یہاں تک سب کو سمجھ آیا؟ اوکے, اس کے بعد یہاں پر ہے the river is said to be dead at those places because it cannot support any aquatic life at those places. A recent study by Worldwide Fund for Nature yani WWF has found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world due to very high level of pollution.
Okay, an ambitious plan to cleanse the highly polluted river Ganga and save it was launched in 1985. It's called Ganga Action Plan. तो यहाँ पर ये बोलता है कि जो रिवर जो है इसको कहा जाता है ये डेड हो गया, ठीक है, इस रिवर को कहा जाता है ये इन जगहों पर डेड हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये हाईली पोल्यूट हो गया, हमने कल भी पढ़ा था, अगर वाटर अगर ये हाईली पोल्यूट हो जाता है तो वहां पर जो एक्वाटिक स्पीशीज होते हैं, एक्वाटिक लाइफ होती है, वेदर वो प्लांट हो और एनिमल हो, वो वहां पर उनको सपोर्ट नहीं कर पाता है एंड अब्रप्टली वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस रिवर को कहा गया द रिवर इज सेड टू बी डेड, इसको डेड कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक्वाटिक लाइफ को इन जगहों पर सपोर्ट नहीं करता है। तो एक रीसेंट स्टडी हो गई है, किसने की है? WWF ने, ये याद रखना, WWF मींस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ WWF, ओके, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ओके, सबने कॉपी किया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो उन्होंने एक स्टडी की थी, उन्होंने देखा कि जो गंगा है उसको 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स में फहरिस्त किया गया। एंडेंजर्ड का मतलब है, वो एंडेंजर्ड रिवर्स का मतलब होता है कि ये जो रिवर है गंगा रिवर, ये खत्म होने की कगार पर है, इसको खतरा है, ठीक है, ये बहुत रिस्क में है, ये खत्म होने को है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो गंगा, उसने कहा था कि गंगा जो है वो एक एंडेंजर्ड रिवर है, जो कि 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर में से एक आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लेवल ऑफ पोल्यूशन इसमें हो गया है, हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन इसमें हो गया है, बहुत ज्यादा। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जो इतनी ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने आपको अभी बोली, जो ये लोग वहां पर रिवर गंगा में करते हैं, उसकी वजह से कितना पोल्यूशन हुआ होगा रिवर गंगा में, वो कितना गंदा होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक प्लान बनाया गया, एक एम्बिशियस प्लान बनाया गया कि हम इस रिवर गंगा को क्लेंस करें, ठीक है, साफ करें, बहुत ज्यादा साफ करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, पोल्यूट हो चुका है, और इसको बचा सके। और ये प्रोग्राम जो है ये कब लॉन्च किया गया था? 1985 में, ठीक है, 1985 में इसको लॉन्च किया गया था एंड दैट वाज नोन एज Ganga Action Plan, okay? It was in 1985 called Ganga Action। ये याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ आता है या वन वर्ड आंसर आता है, आपको लिखना होता है वहां पर, ठीक है। इसलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस लेसन में से निकलते हैं। आप लोग बोलोगे कि हमें टेक्स्ट सिर्फ करने, नहीं, वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो लेसन में से निकलते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो 1985 में एक प्लान लॉन्च किया गया जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, ओके, गंगा एक्शन प्लान। तो इस गंगा एक्शन प्लान का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि पोल्यूशन लेवल जो इस रिवर गंगा में है उसको हम रिड्यूस कर सके, कम कर सके, ठीक है, उसको हम कम कर सके। और लेकिन जो इंक्रीजमेंट हो गई पॉपुलेशन में और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा आ गई, यानी इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा हो गई, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, ये ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। कौन सा रिवर? ये इतना माइटी और सैक्रेड रिवर जो था, ये मतलब बहुत ज्यादा, इसका मतलब इलाज ही नहीं था, ये पहले ही इतना खराब हो चुका था, डैमेज हो चुका था कि इस प्लान का कोई फायदा नहीं आया, क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती
बढ़ती जा रही थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज वगैरह जो थे, कारखाने वगैरह जो थे, वो भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से ज्यादा वेस्ट वगैरह निकलता था, ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती थी वहां पर, जिसकी वजह से जो इनका ये हिंदूज का पाक रिवर है, ठीक है, मतलब ये उनको सैक्रेड मानते हैं उसको, ये वहां पर पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर था ये बियॉन्ड रिपेयर हो गया, दैट मीन्स इसका कोई इलाज ही नहीं है, मतलब ये इतना पोल्यूट हो गया था, इतनी हाई लेवल ऑफ ये पोल्यूशन था इसमें कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके। उसके बाद यहाँ पर आता है, कल हमने देखा था वाटर पोल्यूशन एंड इसकी सोर्सेस किस किस से होता है, अब यहाँ पर कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। अब हम इस वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अगर जो वाटर है ज्यादातर रिवर्स और लेक्स में हमारी कंट्री में, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है, हाईली पोल्यूटेड है, तो हम सबको एफर्ट्स करने चाहिए इस पोल्यूशन को रोकने में, उसको रिड्यूस करने में। जो ये रिवर्स और लेक्स का पानी है, उनका पोल्यूशन रिड्यूस करने में हमें अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो बहुत सारे तरीके यहाँ पर है वाटर पोल्यूशन के, ठीक है। तो पहला जो है वो है सीवेज शुड बी ट्रीटेड properly at sewage treatment plants to make it harmless before discharging it into nearby rivers. That means जो सीवेज है, जो मैंने कल बोला, जो सीवेज जो घरों वगैरह से, नालियों वगैरह से निकलता है, वो सारा सीवेज, उसको हमें प्रॉपरली ट्रीट करना है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, ठीक है। मतलब उसका एक प्रॉपर तरीका ढूंढना है, कहाँ से ये निकलेगा, ये ज्यादातर रिवर्स लेक्स में नहीं जाना चाहिए, और उसको हार्मलेस बनाना है पहले ही, क्योंकि सीवेज में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, सोप्स आ जाते हैं, बाकी सारी चीजें आ जाती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। अगर वो ऐसे ही चले गए रिवर्स में, तो रिवर वाटर या लेक वाटर जो है वो बहुत पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें उस सीवेज को पहले उसमें कन्वर्ट करना है, हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है ताकि ये अगर कल को रिवर या लेक में जाए भी, लेकिन इससे नुकसान ना पहुंचे और रिवर जो है वो पोल्यूट ना हो। And the second one is farmers should use correct amounts of fertilizers and pesticides in the fields so that excessive amounts of these harmful agricultural chemicals are not washed into rivers, lakes and ponds. ठीक है। तो फार्मर्स जो है उनको भी अच्छा खासा यूज करना चाहिए फर्टिलाइजर्स का, मतलब इस तरीके से यूज करना चाहिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का अपने खेतों में, ताकि एक्सेसिव अमाउंट जो है इनका, जो ज्यादातर अमाउंट है इन हार्मफुल एग्रीकल्चरल केमिकल्स का, वो रिवर्स और लेक्स और पॉन्ड्स में ना जाए, यानी तरीके से उनको यूज करना है, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड जो भी वो अपने इस जमीन पे डालते हैं, फील्ड्स में डालते हैं, खेतों में डालते हैं। इसी तरह तीसरा है, जो सारी इंडस्ट्रीज है उनको ये जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए, उसको भी हार्मलेस तरीके से बनाना चाहिए, ताकि जब कल को वो रिवर्स में जाए वो टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, वो जहरीले सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस या जो भी केमिकल्स इंडस्ट्री से निकलते हैं, वो ऐसे हार्मलेस होने चाहिए कि जब वो रिवर्स में जाए, वो डिस्चार्ज होने पर मतलब वो कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, उनको हार्मलेस बनाना है। एंड उसके बाद है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन prohibition laws which exists for the industries producing toxic chemical waste should be implemented strictly by the concerned authorities. That means जो चीजें वाटर को पोल्यूट करती है, हमें उस तरीके के लॉज अप्लाई करने चाहिए, अथॉरिटीज को उस तरीके के लॉज अप्लाई करने चाहिए जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब उन पे उस तरीके की बैन वगैरह आनी चाहिए कि हाँ आप ये वाला केमिकल यूज करो, ये नहीं, क्योंकि इससे रिवर वाटर पोल्यूट हो सकता है या और कोई सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूट हो सकता है। तो हमें ऐसे लॉज अप्लाई करने चाहिए जो स्ट्रिक्टली एक्शन ले मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह के खिलाफ, कि आप लोग ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज क्यों करते हो जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो सकता है, या इसके बदले आप कोई और केमिकल यूज कीजिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी ना हो। इसी तरह फिफ्थ वन इज
गार्बेज जो मैंने बोला, हाउस होल्ड जो घरों से वेस्ट वगैरह निकलता है, हमें उनको ऐसे ही ड्रेन्स, रिवर्स या लेक्स में ऐसे ही थ्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड इवन डेड बॉडीज जो हिंदू लोग ज्यादातर करते हैं, वो क्या करते हैं, अस्थियां वगैरह बहा देते हैं इसी तरह, या कुछ क्या करते हैं, जो इन्फेंट्स वगैरह होते हैं, जो बच्चे मर गए होते हैं या कुछ, उनको ऐसे ही पानी में फेंक देते हैं, ठीक है। तो डेड बॉडीज जो है उनको ऐसे ही पानी में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो उन डेड बॉडीज को या तो क्रीमेट किया जाए, या तो ब्यूरी, या तो उनको दफनाइए, ठीक है, या प्रॉपरली क्रीमेट किया जाए उनको, ठीक है, ताकि जो पोल्यूशन ऑफ वाटर है वो प्रिवेंट कर सके हम, ठीक है। यानी उससे भी पोल्यूशन हो सकता है। इसी तरह लोगों को अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि वाटर पोल्यूशन के कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितने नुकसानात हो सकते हैं, ताकि वो इन फ्यूचर कोऑपरेट कर सके और इसको बचाने में मदद कर सके, ठीक है, और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद कर सके, क्योंकि ये हम लोगों पर ही डिपेंड है। जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हाँ, अगर हमने ये गार्बेज इस तरीके से फेंका इस रिवर में, इससे पोल्यूशन हो सकता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अवेयरनेस लानी है लोगों में कि अगर आप इस चीज से ऐसे करोगे, मे बी इससे एयर वाटर पोल्यूशन हो सकता है, या एनी को मतलब कोई भी पोल्यूशन हो सकता है। तो हमें लोगों में ये अवेयरनेस लानी है कि आप कैसे कर सकते हो, हम कैसे सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं, गार्बेज को ट्रीट कर सकते हैं, ताकि कल को उनको समझ आ जाए और वो लोग भी जो है, आम लोग भी जो है, वो कोऑपरेट करें इंडिविजुअली और इसको बचाने में मदद करें, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ओके। उसके बाद यहाँ पर एक सब टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब हमें ये तो था वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें। अब यहाँ पर एक सब टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सके, बचा सके, ठीक है। तो वाटर जो अवेलेबल होता है हमारे रिवर्स में या लेक्स में, ये तो पता ही पोल्यूटेड होता है, तो ये यूज करने के लायक नहीं होता है होम्स में या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या दूसरी चीजों के लिए, ठीक है। तो पोल्यूटेड वाटर जो ये रिवर्स लेक से निकलता है, इनको ट्रीट करते हैं कौन, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है वाटर वर्क्स में और उनको क्लीन किया जाता है, क्योंकि इसमें बदबू भी होती है। हमने परसों वाटर सैंपल्स देखे, हमने बोला अगर हम पॉन्ड वाटर लेंगे ऐसे ही, हम वो पी सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है। आप उसमें आपने देखा उसमें वो मड्डी वाटर होता है, ठीक है, वो गंदा पानी जैसा, जैसे उसमें वो मिट्टी मिला के होती है, ठीक है, और उसकी स्मेल भी जो है वो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, गंदी होती है उसकी स्मेल। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, पीते तो हम यही पानी है, ठीक है, लेकिन इसको ये पोल्यूटेड वाटर ही होता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, वाटर वर्क्स वाले जो होते हैं, वाटर वर्क डिपार्टमेंट वाले, वो क्या करते हैं, उनके अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से ये रिवर्स लेक्स के पानी को ट्रीट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ठीक है, प्योरीफाई करते हैं, और उसके बाद उसको ऑर्डरलेस बनाते हैं, ODOURLESS, ऑर्डरलेस, यानी उसमें स्मेल वगैरह नहीं रखते, ठीक है। और उसके बाद वो सप्लाई करते हैं घरों में थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स। जो हमारे घरों में जो टैप वाटर आ जाता है वो किसके जरिए आता है, क्योंकि वो पहले वाटर वर्क्स वाले उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, उसमें स्मेल वगैरह जो भी हो वो भी साफ कर लेते हैं, उसके बाद हमारे घरों में सप्लाई करते हैं थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स, ठीक है। तो दिस ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर टू मेक इट क्लीन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो पानी है ये कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे सप्लाई होता है घरों में, कैसे ट्रीटमेंट इनको दी जाती है, मतलब कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं या कौन सी दवाई इनमें लगाई जाती है। तो उन सब इस सब को क्लीन करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस वाटर को केयरफुली यूज करना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, और इसकी वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए, यानी ज्यादा वेस्ट पानी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये गुनाह है ज्यादा पानी वेस्ट करना, ठीक है, बिकॉज देयर इज स्carcity और शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर इन आवर कंट्री। क्योंकि अगर देखा जाए कंट्री में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, एंड इवन इन कमिंग ईयर्स हम देख सकते हैं कि पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो सकती है। तो हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी पानी को सेव रखना है। दैट्स व्हाई हमें इसको केयरफुली यूज करना है और इसकी वेस्टेज जितना हो सके कम करनी है, ठीक है।
تو یہاں پر کچھ طریقے ہیں جس سے ہم یہ پانی کو بچا سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں. جیسے فار ایگزامپل جب آپ پانی یوز کرتے ہو، ٹیپ واٹر یوز کرتے ہو، ہمیں جلد سے ٹیپ بند کرنا چاہیے. کوئی ہوتا ہے نا فار ایگزامپل واش روم جاتا ہے تو وہ اپنا نل کھلا چھوڑتا ہے، فیس واش کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، لیکن پانی کھلا ہوتا ہے، مطلب وہ چلتا رہتا ہے، ٹیپ واٹر چلتا رہتا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب ہم نے پانی مطلب جو ہمارا یوز تھا پانی کا وہ تو ہم نے کیا، ہمیں ساتھ ہی ٹیپس کو بند کرنا ہے. ٹھیک ہے، امیڈیٹلی ہمیں ان کو بند کرنا ہے. اینڈ اگر کہیں پر ہمارے ٹیپس میں لیک وغیرہ ہوتی ہے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلو اب تھوڑا سا ہے تو اچھا وسا اور تھوڑا تھوڑا ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جلد سے جلد اس کو ریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک لیکنگ ٹیپ جو ہے آپ دیکھیے، لیکنگ ٹیپ دیٹ ڈرپس even once every second wastes a few thousand liters of water every year. یعنی جو لیکنگ ٹیپ ہوتا ہے، جس ٹیپ میں لیک ہوتا ہے، اگر اس سے ایک قطرہ بھی نکلتا ہے نا، فار ایگزامپل ایک قطرہ پانی نکلتا ہے جو ویسٹ ہوتا ہے، دیٹ مینس وہ ہر سال thousands of liters of water ویسٹ کرتا ہے. آپ دیکھیے خود ہی سوچے کتنا واٹر ویسٹ ہوتا ہے، کتنے گھروں میں ٹیپس کا لیک ہوتا ہوگا، اور ہر گھر سے کتنے کتنے قطرے نکلتے ہوں گے جو ویسٹ ہوتے ہوں گے، اور وہ کتنے لیٹرز بنتے ہوں گے سال بھر جو ویسٹ ہوتے ہوں گے. تو اسی لیے امیڈیٹلی اگر ہمیں لگے کہ ٹیپس میں لیک وغیرہ ہے ان کو جلدی سے ریپیئر کروانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جب ہم برش کرتے ہیں فار ایگزامپل، ہمیں ایک پانی کس میں لینا چاہیے، مگ میں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جو رننگ واٹر ہوتا ہے، رننگ ٹیپ واٹر ہوتا ہے، اس کو ہمیں بند کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے ایسے ہی نل کو کھلا چھوڑ دیا وائل برشنگ، ٹھیک ہے، تو سیورل لیٹرز آف واٹر ویسٹ ہوتے ہیں. کچھ کی عادت ہوتی ہے نا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برش کرتے رہتے ہیں، وہ نل کے سامنے ہوتا ہے اور نل بھی کھلا چھوڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ٹیپس جلد سے جلد بند کرنے چاہیے. اور فار ایگزامپل اگر رننگ ٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے پانی نکلتا ہے، ہمیں نیچے اس کے باکٹ وغیرہ رکھنی چاہیے تاکہ وہ جو پانی ہے وہ اس میں سیو رہ سکے، ایسے ضائع نہ ہو. یہاں تک سمجھ آیا؟ اوکے. اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ یہاں پر کنزرویشن میتھڈ سکھاتا ہے. فار ایگزامپل گھر میں جو واش بیسن ہوتی ہے، سنک وغیرہ کچن میں ہوتا ہے، جب ہم برتن دھوتے ہیں ہم ایسے ہی ایک ایک برتن دھوتے ہیں، نل کھلا چھوڑتے ہیں تو برتنوں کو صاف کرتے ہیں، یوٹینسلس کو صاف کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، ایک بیسن جو ہے واش بیسن یا سنک جس کو آپ بولتے ہیں، ہمیں اس میں پانی جمع کر کے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، صاف پانی جمع کر کے، اور وہ جو یوٹینسلس ہے پھر ہمیں انہیں میں دھونے چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے رننگ ٹیپ نہیں لگانا چاہیے کہ پھر ہم اس کے نیچے دھوئے. ہمیں واش بیسن میں پانی کو کلیکٹ کرنا، پھر اسی میں دھونے چاہیے اپنے یوٹینسلس. اسی طرح جو فار ایگزامپل ہم کھانا پکاتے ہیں نا، رائس پکاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاول پکاتے ہیں، تو ہم وہ چاول دھوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم وہ جو پانی ہے وہ بھی پھینکتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ہمارے ماما وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ رائس کو دھوتے ہیں، جب ان کو چاول پکانے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پانی پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس پانی کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس پانی کا، اگر گھر میں پیڑ پودے ہو، پوٹس وغیرہ ہو، فلاورنگ پوٹس وغیرہ ہو، تو ہمیں وہ پانی ان میں ڈال دینا چاہیے. ایک تو پلانٹس کا بھی پانی مطلب ہو جائے گا، ان کی بھی پیاس بجھ جائے گی، اور کیا ہو جائے گا، اور یہ جو پانی ہے یہ ویسٹ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح فار ایگزامپل ہم جو پلسز، دالیں وغیرہ ہوتی ہے، ویجیٹیبلس یا فروٹ، جب ہم ان کو دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پانی ہم ایسے ہی مطلب ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر اس کے بدلے کیا کرنا چاہیے، اس کے بدلے ہم یہ پلانٹس میں ڈالیں گے یہ پانی. ٹھیک ہے، ایک تو پلانٹس کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور پانی بھی ویسٹ نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے، فار ایگزامپل جب واش روم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہاں پر ایک فلش، فار ایگزامپل آدھا ہی فلش لگے گا، ہمیں ضروری نہیں کہ ہم فل فلش لگائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ پانی ویسٹ ہوتا ہے. جہاں پر ضرورت ہے وہیں پر لگائے، ضروری نہیں کہ فل جو یہ فلش وہ سارا یوز کرے. ہاف اگر ہو سکتا ہے تو ہاف بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ میتھڈس ہیں کنزرویشن آف واٹر کے، ہم اس طریقے سے انڈیویجولی اپنے گھروں میں پانی کو سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن؟ جی، کنفیوژن یہاں تک کسی کو؟ No, ma'am. اوکے.
अब है इसमें लास्ट एक टॉपिक, दैट इज पोटेबल वाटर. ओके, what is potable? Does anybody know what potable is? मैम वो पानी जो हम कंज्यूम कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग. Very good. So the term potable here means drinkable, that is fit for drinking. ठीक है, तो वो पानी जो सेफ है पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं. ठीक है, तो टैप वाटर जो हमें थ्रू पाइप से मिलता है हमारे घरों में, वो क्लीन होता है और यूजुअली उसमें कोई बदबू वगैरह नहीं होती है, फाउल स्मेल नहीं होता है. तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सेफ है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए. लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ टैप वाटर जो है वो लगता है क्लीन और उसमें कोई फाउल स्मेल नहीं होते, लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने परसों देखा. ठीक है, उसमें भी कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम वैसा पानी पिएंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक इंसान जो है वो बीमार पड़ सकता है. ठीक है, वो बीमार पड़ सकता है. सो अगर हम देखेंगे, हमेशा जो नजर आने वाली चीज, वो कहता है ना कि मतलब हमेशा जो दिखता है, जैसा दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है, तो यहाँ पर भी वही अप्लाई होता है. जब हम क्लियर, ट्रांसपेरेंट और स्मेल के बगैर वाटर देखेंगे, हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमेशा सेफ ही होगा. नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. वरना आप लोग कहोगे कि मैम आपने तो कहा जो हमारे घरों में टैप वाटर आता है वो तो साफ करके होता है, फिर क्या प्रॉब्लम है उसमें. ठीक है, नो डाउट उसको साफ किया जाता है, मड वगैरह निकाल के होता है, या उसमें जो स्मेल वगैरह होती है उसको साफ किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से, जो हमें नजर नहीं आते, जो हमें माइक्रोस्कोपिक वे में दिखेंगे. ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि डायरेक्टली हमें टैप वाटर से पानी नहीं पीना चाहिए. ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, वो बॉईल वगैरह नहीं करते. मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं, वो बॉईल पानी को नहीं करते. ठीक है, ऐसे ही नल के पास जाते हैं, वहां से पानी लेते हैं, दैट्स ऑल. ठीक है, लेकिन नहीं, हमें क्या करना चाहिए, जब हम पानी ले नल से, ठीक है, टैप से पानी ले, उसको हम पहले बॉईल करना है. ठीक है, ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स वगैरह है वो किल हो सके. हमें बॉइल्ड पानी पीना चाहिए. ठीक है, वो हमारे लिए बेटर रहता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही टैप वाटर से पानी पिएंगे, मे भी उसमें कोई इंसेक्ट हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा साबित ना हो, जिसकी वजह से हम बीमार हो. ठीक है, तो अब ये जो टैप वाटर है इसको हम कैसे फर्दर प्यूरिफाई कर सकते हैं घरों पर, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ मेथड्स है जिससे हम इस पानी को पोर्टेबल बना सकते हैं, यानी ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. पहला ही, या तो हम इसको फिल्टर कर सकते हैं. ठीक है, या तो बॉईल कर सकते हैं या तो बाय क्लोरिनेशन. ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. यहाँ पर देखिए, पहला बोला मैंने फिल्टरिंग. ठीक है, बाय फिल्टरिंग हम इसमें क्या करते हैं, यूज इस टाइप के ये पोर्सलिन कैंडल फिल्टर्स होते हैं. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ये फिल्टर्स होते हैं जिसमें हम पानी को फिल्टर वगैरह करते हैं. इसमें ये क्या करते हैं फिर, एक पोर्सलिन का बना हुआ होता है ये फिल्टर, तो ये वाटर को फिल्टर करता है. इसमें क्या होता है, ये जो टैप वाटर होता है वो इसमें भरा जाता है इस कंटेनर में, इसमें कैंडल जैसी ये शेप होती है, ये पोर्सलिन का बना हुआ होता है. ठीक है, तो ये जो वाटर है ये इसमें फिल्टर होता है, इसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, इस पोर्सलिन कैंडल के, और हम नीचे इसको एक दूसरा कंटेनर रखते हैं जिसमें वो फिल्टर्ड वाटर जाता है, और जो भी इसमें इम्प्योरिटी वगैरह होती है वो इसी पोर्स में वहां पर रह जाते हैं, और जो नीचे हमें पानी कलेक्ट होता है वो साफ होता है, फिल्टर मतलब फिल्टर्ड पानी होता है. आप लोगों ने घरों में भी देखा, फिल्टर लगा होता है ना पानी का. ठीक है, जहां से हम पानी वगैरह फिर लेते हैं. ठीक है, या इसी तरह दूसरा होता है इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर, जैसे एक्वागार्ड वगैरह होता है, देखा ही होगा आप लोगों ने, आज तो हर घर में ऑलमोस्ट है, देखा है एक्वागार्ड वगैरह. जी, यस मैम. देखा. हाँ, तो वो भी क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर होता है. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो उसमें पानी में जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टैप वाटर में,
ان को रिमूव करता है और अपनी जो यूवी रेडिएशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, तो उनमें जो यूवी रेडिएशन होते हैं उस इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर में, वो यूवी रेज क्या करते हैं काम, वो ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स प्रेजेंट होते हैं टैप वाटर में, उनको मार देता है, किल करता है अपनी रेज से, और इसको सेफ बनाता है, पोर्टेबल बनाता है, इस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए सेफ रखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर जो है वो टैप के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला वाटर जो है उसको हम बॉइलिंग से भी सेव कर सकते हैं। अब जिनके पास फिल्टर नहीं होगा या फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर नहीं होगा, वो बॉइलिंग से भी कर सकते हैं। जब पानी जो है उसको हीट किया जाता है और वो बॉइल होता है एट 100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो बॉइल हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पे जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं पानी में वो मर जाते हैं, उनको किल किया जाता है और वो सेफ हो जाते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए पोर्टेबल हो जाते हैं वो, ठीक है। तो बहुत सारे हाउस होल्ड जो है वो बॉइलिंग मेथड यूज करते हैं सेफ पानी, मतलब ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए सेफ पानी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद एक और है दैट इज क्लोरिनेशन, जो मैंने अभी बोला। क्लोरिनेशन एक कॉमन मेथड है, केमिकल मेथड है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। क्लोरिनेशन जो है वो कैसे होता है, उसको किया जाता है, उसमें क्या करते हैं काम, पानी में जो है कुछ क्लोरीन टैबलेट्स ऐड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स ऐड किए जाते हैं। तो क्लोरीन जो है ये एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं उनको मतलब मार देता है, किल करता है, और इसको भी सेफ बनाता है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। लेकिन हमें ज्यादा क्लोरीन टैबलेट्स का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितना मतलब अमाउंट है उतना ही करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज की लिमिट होती है। अगर हमने क्लोरिनेशन ज्यादा इस्तेमाल किया या क्लोरीन टैबलेट ज्यादा इस्तेमाल किए, उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए हम एक और चीज भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। हम ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज कर सकते हैं क्लोरिनेशन वाटर के लिए और इसको सेफ बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई सवाल पूछना है? जी बोलिए। तो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है दैट वाज वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन रिलेटेड जो था, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट हो गया और मैंने आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड किए हैं, ठीक है। तो हमने वो किए हैं, आप लोग वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये कौन है, हाँ रोल नंबर 2। तो आप लोग वो कर लीजिएगा और इंशाल्लाह इधर सैटरडे और मंडे आई विल चेक योर नोटबुक्स, ओके। आप लोग वो लिखिएगा सारा। और कल हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन वर्ड आंसर या वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू टाइप हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आप लोग इसका रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। तो कल हम थोड़ा सा इसका रिकैप्चुलेशन करेंगे और ये थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एमसीक्यूज वगैरह और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ाया उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एंड जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, तो फिर या तो सैटरडे से और मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को 4 चैप्टर्स है ना। तो यहाँ तक किसी को कोई कुछ मत पूछना है, कुछ भी? मैम ओके तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट इंशाल्लाह, या इधर हम सैटरडे और मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये काम आप उतारिएगा, जो मैंने पीडीएफ आपको कल सेंड की टेक्स्ट क्वेश्चंस की, वो आप लोग कीजिएगा। और जो मैं कल यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी वो भी आपके ये मतलब बहुत यूजफुल साबित हो जाएंगे, और आप उनको मतलब एग्जाम के लिए भी उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं करने, वो आप लोग वैसे भी कर सकते हो, वो टेक्स्ट में निकलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर वन वर्ड आंसर या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका ये प्रिपरेशन करके रखिएगा आप, तो कल हम देखेंगे। और चलिए, अल्लाह हाफिज।